ये कर लीजिए P5। जिनेश जी आंसर ठीक है। देखिए नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन मेरा ही बनाया हुआ है। और ये है क्या, देखिए ये कह रहा है ए लिमिटेड ने सप्लाई 18% किया, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट इसको बाद में पकड़ लेता है, बोला नहीं नहीं सर ये कहाँ 28% होगा। एक मिनट मुझे आप सॉल्व करने दीजिए, कितना होगा इस पर 28%। और वो अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्योंकि आप तो कस्टमर से रिकवर कर नहीं सकते हैं, तो ये जो 11,200 है दैट विल बी ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ 28%। तो 11200 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 28%, ये आएगा 2450। एग्रीड। अब वो ऑलरेडी कितना दे चुका है 1200, तो अब बाकी कितना रिकवरी होगी 1250। तो यही प्रैक्टिकली भी होगा। डिपार्टमेंट जब भी क्वेश्चन करेगा आपके रेट पे और वो मान लीजिए कुछ भी करता है, तो इसको इंक्लूसिव मान लेगा उस रेट से और फिर बाकी रिकवरी अमाउंट कैलकुलेट करेगा। What are the methods of computation of GST? Addition, subtraction, ITC, invoice method या all of the above? बोलिए। How the GST is computed in addition method? Rates of tax into expenses, rates of tax sale price minus purchase price, rate of tax this या none of the above? Rates of tax into expenses या प्लस प्रॉफिट भी लिख सकते थे। How is GST computed on subtraction method? सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस को पहले माइनस करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज द आंसर बी। हाउ इज जीएसटी कंप्यूटेड इन आईटीसी मेथड? तो यहां पर सी मेथड आएगा, ब्रैकेट को खोल दिया तो ये आएगा। ऑन व्हाट वैल्यू जीएसटी इज लेवाइड? कॉस्ट ऑफ इनपुट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ इनपुट प्लस एक्सपेंस प्लस लॉस, कॉस्ट ऑफ इनपुट प्लस कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट ऑफ इनपुट प्लस कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। बताइए। ठीक है, यही नियरेस्ट तो यही है, सी आंसर है। The value of supply of goods or services or both shall be the transaction value, retail sale price, wholesale MRP, ट्रांजेक्शन वैल्यू जिस प्राइस पे हम लोग करते हैं। The value of supply shall include any non-GST taxes, interest, late fee, penalty for delayed payment, subsidies directly linked to the price except subsidy provided by the central, or D answer, correct. Question 8. The value of supply shall include entertainment tax, excise duty, VAT, all of the above. All of the above. Which of the following shall not be included in the value of supply? GST, interest, late fee, commission. या इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जीएसटी, इंटरेस्ट और लेट फी और पेनाल्टी फॉर डिलेड पेमेंट of any consideration for any supply shall be included, excluded, require no adjustment, shall be included, excluded as per wish of the supplier, shall be included. Subsidies provided by the central government, state government, included, excluded, required, no adjustment, wish, excluded, B answer. When can the transaction value be rejected for computation for value of supply? When buyer and seller is related and price is not the sole consideration. When the buyer and seller are related or price is not the sole, it can never be rejected. अच्छा यहाँ और है, यहाँ एंड है, नहीं सॉरी बी होगा, बी आंसर होगा। या तो बायर एंड सेलर आर रिलेटेड तो रिजेक्ट हो जाएगा, बायर सेलर नॉट रिलेटेड बट हिडन चार्जेस है तो रिजेक्ट हो जाएगा।
कोई भी एक कंडीशन में। What deductions are allowed from the transaction value? Discounts offered to customers subject to conditions, incidental expenses subject to conditions, amount paid by customer on behalf of supplier, freight charges. What deductions are allowed? ए, यहां कोई डाउट है आपको 14 में 12th में? Okay. Discounts given after the supply is deducted from the value of taxable supply if such discounts is given as per the agreement entered into at or before the supply. Such discounts is linked to relevant invoices. Proportionate ITC is reversed या all of the above. All of the above. Known भी होना चाहिए, invoices से लिंक भी होना चाहिए, और कैसे लिंक होगा? थ्रू क्रेडिट नोट। फिर आउटपुट टैक्स भी कम होगा और आईटीसी भी कम होगा। आउटपुट टैक्स सप्लायर कम करेगा, रिसीपिएंट आईटीसी कम करेगा। Examine the following statement. If there is a contract of supply of goods, supplier shall use material and labor to deliver the specified quality of goods to the recipient. या फिर से पढ़ लीजिए कि सप्लायर और बायर में एक एग्रीमेंट है जहां पर सप्लायर मटेरियल अपना यूज करके, लेबर अपना यूज करके सप्लाई करेगा। अब the material is supplied by recipient free of cost. The value of supply shall be on cost of material and cost of labor. सही है गलत? जो खर्चा सप्लायर को करना चाहिए रिसिपिएंट कर दिया, तो भैया कर दिया, क्यों कर दिया? तो अब मटेरियल प्लस कॉस्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा। द मटेरियल इज नॉट सप्लाइड बाय रिसिपिएंट, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर। तब तो अच्छी बात है, ट्रू, बोथ ट्रू। क्वेश्चन 16, कमीशन चार्ज बाय द सप्लायर इज टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रू फॉल्स? ट्रू। रिकवरी है, किसी भी तरह की अगर रिकवरी हो और इनवॉइस में है या कॉन्ट्रैक्ट में है तो उस पर जीएसटी लगेगा। पैकिंग चार्जेस नॉट चार्ज बाय द सप्लायर इज टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। फॉल्स। चार्ज ही नहीं किया हुआ तो नहीं होगा। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ए आंसर। 17, ये वही वाला क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है। ये सब हटा देंगे हम लोग, तो इसको मैं हटा ही दूंगा, इसको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 18, डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग अमाउंट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू or not, assuming they are not charged by the supplier either in the invoice or separately. यानी कि रिकवरी नहीं हो रही है। कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग मटेरियल, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। धर्मादा चार्जेस नहीं लगेगा, तो बोथ नो। क्वेश्चन 19, ये वही वाला क्वेश्चन है, इसको दोबारा यहां क्यों आ गया? इसको हटा देंगे। सो थैंक यू सो मच, आज यहीं तक। कल हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट का कैश काउ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और हम लोग के लिए कैश, क्योंकि इनवॉइस काट दिया, फेक इनवॉइसेस, वो तो कैश ही हो गया। और इनफैक्ट 3B में जितना मैंने आईटीसी बिना इनवॉइस के बढ़ा लिया था, अब तो 10% का रिस्ट्रिक्शन भी है, तो वो सब कैश काउ थे, तो हम लोग वो करेंगे। और काफी झगड़ा आईटीसी पे ही होता है, तो उसको कल शुरू कर रहे हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।